হ্যালো ফ্রেন্ডস, অনলাইন টেকনিক্যাল সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগতম। পয়গম্বর ইস্যুতে গোটা বিশ্ব জুড়ে অশান্তি যেন থামছেই না। নবী মোহাম্মদকে নিয়ে কটূক্তি করার অপরাধে ইতিমধ্যে ভারত সহ বিভিন্ন প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এর বিরোধিতায় নেমেছে। নুপুর শর্মাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে মানুষজন। সেটিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের একাধিক জেলায় ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, এমনকি ভাঙচুরও হয়েছে, যার জেরে কেন্দ্র করে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য পুলিশের একাধিক বড় বড় সিদ্ধান্ত। চলুন আজকে দেখে নেব এই পয়গম্বর ইস্যুতে রাজ্য সরকার তথা রাজ্য পুলিশের কি নতুন আপডেট বেরিয়ে এসেছে। সাথে সাথে নুপুর শর্মার তরফ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি বড়সড় আপডেট। তো আপনি যদি একজন ভারতীয় নাগরিক হওয়ার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকেন অথবা পশ্চিমবঙ্গে থেকে থাকেন, তাহলে এই প্রত্যেকটি আপডেটই আপনার জেনে রাখা অত্যন্তই জরুরি। তাই ভিডিওটিকে একটু অবহেলা না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। তো চলুন শুরু করা যাক। আলোচনা শুরু করার পূর্বে প্রত্যেকবারের মতোই করবো একটি রিকোয়েস্ট, ইনফরমেশনগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন এরকমই লেটেস্ট ট্রেন্ডিং আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। বলা হচ্ছে রাজ্য জুড়ে হিংসার দায়ের 42 মামলা, গ্রেপ্তার 200, কাউকে ছাড়া হবে না জাবিদ সামি। নুপুর শর্মার মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভের নামে তাণ্ডবকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে পুলিশ। সোমবারই সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট করলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলার প্রধান জাবেদ সামিম। ওই দিন এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, সমস্ত পুলিশ আধিকারিকদের এ ব্যাপারে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া আছে। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, উত্তেজনার প্রশমনে বিভিন্ন জায়গায় টহলদারি চালাচ্ছে রাজ্য পুলিশ। গত কয়েকদিনের হিংসায় যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য পুলিশ। দেশের আইন অনুসারে তাদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত পুলিশ আধিকারিকদের এ ব্যাপারে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। কে বা কারা গোলমাল পাকাচ্ছে তাও তদন্ত করবে পুলিশ। কিভাবে এত মানুষ এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে তাও খতিয়ে দেখবে রাজ্য পুলিশ। শামীম জাবিদ আরও জানান, সাম্প্রতিক হিংসায় এখনো পর্যন্ত সব মিলিয়ে 42টি এফআইআর রুজু হয়েছে। এর মধ্যে 17টি এফআইআর হয়েছে হাওড়া কমিশনারেট এলাকায়, 9টি এফআইআর হয়েছে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায়। ছোট ঘটনাতেও এফআইআর রুজু হয়েছে। পথ অবরোধ, ভাঙচুর, পাথর ছোঁড়া ও আগুন লাগানোর ঘটনায় আলাদা আলাদা করে অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। বিভিন্ন ঘটনায় এখনো পর্যন্ত 200 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাণ্ডবকারীদের কাউকেই ছাড়া হবে না, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ করবে প্রশাসন। উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে পুলিশের টহলদারি চলছে, সেই জন্য আমরা অন্য জায়গা থেকে পুলিশ কর্মীদের সেখানে পাঠিয়েছি। তো ফের বুঝতেই পারছেন এই মোহাম্মদ নবী ইস্যুতে রাজ্যে যেভাবে অশান্তি এবং ভাঙচুর ছড়িয়ে পড়েছে, তার জেরে রাজ্য সরকার তথা রাজ্য পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। একটি সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য পুলিশে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এবং রাজ্য পুলিশের প্রধান এডিজি জাবেদ সামিম জানিয়ে দিয়েছেন যে এর সঙ্গে যারা যারা যুক্ত আছে তাদের কাউকে ছাড়া হবে না। উত্তেজনা প্রশমনে বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই পুলিশি টহলদারি চালানো হচ্ছে। হিংসার সঙ্গে যারা জড়িত, যারা এই আইনের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সামিম। দেশের আইন অনুসারে তাদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে সাফ জানানো হয়েছে। এমনকি প্রত্যেক পুলিশ কর্মীদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, যারা এই গন্ডগোল পাকাচ্ছে তাদের খুঁজে বার করবে পুলিশ। এমনকি কিভাবে এই এত লোকজন একত্রে জমা হচ্ছে সেটিকেও খতিয়ে দেখবে। এখনো পর্যন্ত এই সমস্ত মামলাকে কেন্দ্র করে 42টি এফআইআর রুজু হয়েছে সরকারের কাছে, যার মধ্যে 17টি হচ্ছে আপনার কমিশনারেট এলাকা এবং 9টি হচ্ছে আপনার গ্রামীণ এলাকা। আর শুধু তাই নয়, এছাড়াও পথ অবরোধ, ভাঙচুর, পাথর ছোঁড়া এবং আগুন লাগানোর ঘটনায় আলাদা আলাদাভাবে অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। প্রতিটা ক্ষেত্রে আলাদা করে তদন্ত করবে বলে জানানো হয়েছে এবং যারা এদের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে প্রশাসন। এখনো পর্যন্ত 200 জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে রাজ্য পুলিশ। তাই আমরা যে বা যারা এইভাবে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি, আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি, তারা খুবই সাবধান। তাদের প্রত্যেকের উপরে আইনের তো ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে। बयान दिया है, उसके बाद से आपको धमकियां मिल रही हैं या फिर ऑल्ट न्यूज़ के जो फैक्ट चेकर है उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद से मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है। तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मैंने मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की
कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूं तो मैं इनवाइट करती हूं किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, एक बात पूरी होने दीजिए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं जिसको मैं फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने खराब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी और आपने सिलेक्टिवली हेविली एडिट पोर्शन क्यों अपलोड किया, तो जवाब देने की जगह और फैक्ट चेक करने की जगह मुझसे कहते हैं कि जिस अन्य चैनल पे गई थी उस पे धर्म संसद की वीडियो अपलोड कर लो। भाई साहब, आप बहुत बड़े फैक्ट चेकर बताते हैं अपने आप को, जैसे मैं कहती हूँ फेक न्यूज स्प्रेडर। ना तो मैं किसी मीडिया चैनल में काम करती हूँ, और धर्म संसद में ना तो मैं हिस्सा थी वहां पे, और ना मैं धर्म संसद का यहाँ सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपत्तिजनक शब्द इसलिए मैंने कहा क्योंकि अगर आपको वो आपत्तिजनक नहीं लगता है तो जो आपने कहा, जिस एडिटेड चीज़ को मतलब जो एडिटेड पोर्शन है जिसको डाला गया है मोहम्मद जुबैर की तरफ से, उस बयान को आप दोहरा सकती हैं? देखिए, साफ बात तो मैं इतनी कहूंगी कि अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूं। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। कृपया करके फैक्ट चेक करें। मैं इनवाइट करती हूं। मैं मोहम्मद जुबैर को ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूं। मैं इनवाइट करूंगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेट्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। अब कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस 70,000 बार पढ़ चुकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तो 80 हो गया होगा कि मैं परेशान होगी, कितना फॉलो कर लूंगी। सोशल मीडिया पर फोन कॉल, सुबह मेरे पुराने घर पे तो लोग एकत्रित हो गए थे पूछने के लिए नुपुर शर्मा कहाँ है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, देखिए, सिविल सोसाइटी में इस चीज की जगह नहीं है। विचार विमर्श करिए, अच्छी बहस करिए। तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूंगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। एक किसी ने मुझे अभी एक लिंक भेजा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने तो वो वाली कंपाइलेशन बनाई है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चल रहा है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे फोन पे, मेरे इनबॉक्स में, मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से
एक सिविल सोसाइटी की डिबेट की जगह अगर मुझे या मेरे परिवारजनों में से किसी को भी इतनी सी भी हानि हुई तो उसमें 150% मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने नकली फर्जीवाड़ा फेक न्यूज फैलाया। फैक्ट चेक करने की जगह, सिविल डिबेट करने की जगह उन्होंने एक हेविली एडिटेड सिलेक्टिव वीडियो अपलोड किया, और जब उनसे पूछा कि आप सब कुछ दिखाइए तो उन्होंने बात से मुकर के बिल्कुल डाइवर्जन मार लिया। जो वीडियो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है वो डिस्टॉर्टेड है। मैं आपको कह रही हूं वो हेविली एडिटेड है, और अब मामला सब जुडिस है। मैंने अपनी कंप्लेन दर्ज कर दी है। इंटेलिजेंस इनपुट से मुझे पता चला है कि मुझे और मेरे परिवारजनों को ये सिर्फ हल्की नहीं है, बहुत सिवियर डेथ थ्रेट है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर किसी के स्क्रिप्चर से कुछ पढ़ना बोलना अगर मार काट की थ्रेट और धमकी इनवाइट करता है, तो फिर आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था कि हम एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की कंट्री है एंड फ्री स्पीच एंड डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ अ डेमोक्रेसी, तो क्या वो सही नहीं था? तो ये कौन लोग हैं जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय की बात ना मान के इस तरीके की बदसूरत धमकियां मेरे और मेरे परिवारजनों के को भेज रही हैं? आपने जो पुलिस कंप्लेंट लिखाई है नूपुर, उसमें शिकायतकर्ता मोहम्मद जुबैर और सारी मतलब पुलिस को बाकायदा डिस्क्रिप्शंस दिया है, आपने सारी जानकारियां दी हैं। और मेरे पास था। मतलब इसके साथ साथ एक और सवाल है कि आप सुरक्षा की मांग भी कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ, और पुलिस कह रही है, मैं नहीं, कि आपके खिलाफ मोहम्मद जुबैर ने जो मुहिम छेड़ दी है फेक न्यूज स्प्रेड करके, ये कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि ये भारत से भी बाहर से आ रही है। तो कल को अगर मैं दोबारा तिबारा कहूंगी मेरे परिवारजनों को, और मेरा तो पब्लिक प्रोफाइल है, हल्की सी भी हानि पहुंची तो इसमें केवल और केवल 150% फेक न्यूज स्प्रेडर मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार हैं। साथ में मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी। आशा रखती हूं कि मोहम्मद जुबैर इनके खिलाफ भी ऐसी मुहिम छेड़ेंगे, तो फिर married as Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon him married as Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon him married as Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. अब अगर मैं आशा करती हूं कि मोहम्मद जुबैर का अगला ट्वीट होगा, मैंने तो खैर ऐसे कोट भी नहीं किया जैसे किए हैं, कि जाकिर नायक उनके धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके धर्म को गाली दे रहे हैं और भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद मैं भी देखती हूं अगर 1 लाख से ऊपर सरतन से जुदा की मांग और सामूहिक बलात्कार की मांग आती है तो क्यों नहीं करते? मैंने बोला ना, एक सिविल सोसाइटी है, डिबेट करते हैं। अगर किसी के स्क्रिप्चर से कुछ कोट करना अगर नफरत फैलाना है तो सवाल ही बदल गया, सवाल ही बदल गया। और मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं मैं आपको, मैं क्या क्या दिखाऊं आपको? द कॉल्स आई एम गेटिंग, द मैसेजेस आई एम गेटिंग, एंड मैं कितनी बारी दोहराऊं कम है, मेरे परिवार में से किसी को भी कुछ हुआ, करने वाला और उससे बड़ा अपराधी मोहम्मद जुबैर रहेगा। देख लीजिए आप, ये देखिए सब, ये देख लीजिए आप सब। आपको फोकस करना है, देखिए। मैं चाहती हूं दुनिया भर देखे। ये सभी एक ही समुदाय के लोगों की तरफ से आपको कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं? मुझे तो लोग बना के भेज रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, इसको कंपाइल करके भेजा है हमारे एक समर्थक ने कि दीदी आपके खिलाफ बहुत सीरियस मामला चल रहा है, कौन कौन से शहर से, कौन कौन से, वो लोग अपने आप, मेरे पास सच में इतना समय नहीं है अभी कि मैं 1 लाख पढ़ूं। मेरे को अगला 1 महीना लग जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकती और बयान नहीं कर सकती कि मैं इकट्ठा ही नहीं कर पाऊंगी कहां कहां से किस किस तरीके की धमकी मुझे आई है। और आज तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पुराने घर के अंदर लोग एकत्रित हो गए पूछने के लिए कि नुपुर शर्मा कहाँ है। ये बाकायदा मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली हेडक्वार्टर में
मैंने करी है। नेचुरली जब पुलिस ही कह रही है कि आपकी जान को खतरा है। তো फ्रेंड्स আজকের আপডেট ছিল এতটুকুই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র আপডেটগুলো আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা। ইনফরমেশনগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং সকলকে সচেতন করতে ভিডিওটিকে বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।